Class, why physics is difficult? You will say because numericals are difficult, conceptual problems are difficult. But if I say that I am going to explain you an interesting problem which will explain you centrifugal force for class 10th and the concept of pseudo force of class 11th also, and you are going to enjoy it, then actually if you focus on the concept, then it's not difficult, it's interesting. Let me have a look. Fill the bucket with water and start revolving it in a vertical circle. Now when I'm saying vertical circle, start imagining beta the whole act. Now the bucket is revolved in the vertical circle, and at the topmost point of the vertical circle, bucket is just upside down. And if I say that if you are revolving the bucket with a proper speed, then the water is not going to spill out. Then is it not a magic? And that magic is physics. Let me explore it. These are the two positions of the bucket in the vertical circle. With the black pen, I am going to mark the forces on the bucket only, and with red pen, the forces on water only. Now, when we are going to analyze the bucket full of water, then is it not that there are two objects, bucket and water? Bucket is also moving on the circular path and water is also moving on the circular path. Now do you remember when I explained you dynamic equilibrium, and when I explained you the circular motion, I told you that there are two forces acting on the object which is moving on the circle? Centripetal force and centrifugal force. Centripetal force is a real force, and any force present in the mechanical system starts acting as the centripetal force. If such force is present, then only the object will move on a vertical circle. And centrifugal force is a ghost force, is a pseudo force. It's not there, but the object moving on a circle feels as if it is there. And the centripetal force is balanced by the centrifugal force, then only the object is on the circular path, and centrifugal force is responsible for the dynamic equilibrium. So just focus on the bucket. Contact force, non-contact force, everything is explained to class 10th, so they are going to understand it. And class 11th, for you this whole topic pseudo force is there in your syllabus. So when we will do the Newton's laws of motion, then this whole explanation will be your syllabus. Just check out the bucket. The bucket is moving on the circle with help of this string. So bucket experiences a force, gravitational force in vertically downward direction, which is here. This black vector with the mass of bucket plus mass of water, let me write it MW, mass of water into G. This is the force on the bucket, and this is the force on the bucket, again tension force of the string. So actually this tension force is holding the weight of the bucket and the water. Is it clear, all of you? Now when bucket is at rest, the bucket is experiencing only two forces, tension and gravitational force. Now let me focus on water. I am drawing the vectors
on the water with red pen. So just focus on this force. This is M of water into G. So this is the force, gravitational force acting on the water. And since water is pushing the base of the bucket down because of its weight, the bucket is reacting to the water in upward direction, and it is normal reaction force of base on the water. So water is also experiencing these two red forces when the bucket is at rest. But as soon as bucket starts revolving on the vertical circle, now the force called centrifugal force comes into the picture. And centrifugal force acts radially outward. सेंटर से दूर बाहर की ओर, रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है. तो बकेट पर जब फोर्स बता रहे हैं तो बकेट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखा रहे हैं, और जब वाटर पे फोर्स दिखा रहे हैं तो वाटर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखा रहे हैं. अब क्योंकि यहाँ पर वो दोनों एक ही पोजीशन पर हैं, तो हमने सारे वेक्टर्स को देखो स्टार्ट एक ही पॉइंट से किया है. एक्चुअली एक ही पॉइंट से करना चाहिए था, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, बकेट एंड द वाटर. सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स on the bucket. So now moving bucket is experiencing centrifugal force, gravitational force and tension. Let me circle these forces so that you can clearly differentiate between the forces on the bucket. ठीक, ये circled forces bucket के हैं. And the water is experiencing gravitational force, centrifugal force radially outward, and normal reaction force of the base of the bucket. अब देखो, जब ये घूम रहा है तो बकेट को सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा? सेंट्रिपिटल फोर्स कैसा हो? A force which is acting towards the center of the circle at every point, right? And for bucket, this is the tension force which is always acting towards the center. See, tension force is always acting towards the center. So tension is the centripetal force for bucket. So let me write, tension is centripetal force for bucket at every point. Now check out the water. Which force is acting as the centripetal force for water? Because if water wants to remain on the circular path, it needs a force which is always directed towards the center. And just check it out. At this point, water is pushing the base of the bucket in downward direction, and the bucket is reacting to the water. Bucket is reacting to the water, and that force I have to show with the red pen. So bucket is reacting on the water in upward direction, which is normal reaction force at this point. When water is moving on a circle, then another force, centripetal force, also comes into the picture. So first let me ask you, which object is our primary concern? क्वेश्चन किसके बारे में है कि भाई पानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर बकेट से बाहर क्यों नहीं आता? तो हमें किसके फोर्सेस को एनालाइज करना चाहिए. बात कैसे सोची जाए वो भी तो इम्पॉर्टेंट है कि हम कंक्लूजन पर भी पहुँचे, बात भी समझ आए और फिज़िक्स हमें आसान भी लगे. तो किसके बारे में सोचना चाहिए हमको, किसके फोर्सेस के बारे में? पानी के या बकेट के? ऑब्वियसली वाटर के, क्योंकि वाटर बाहर क्यों नहीं आ रहा यही तो हमें पता करना है. तो यहाँ पर देखो मैंने बकेट पे एक्ट करने वाले फोर्सेस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है. ठीक है,
टेंशन फोर्स तुम्हें दिखा दिया कि सेंटर की ओर है तो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, लेकिन अब हम जो रेड फोर्सेस लगा रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लैक फोर्स है ये टेंशन फोर्स बकेट का है. ब्लैक वेक्टर इज फॉर बकेट. सो लेट मी करेक्ट इट हियर. ठीक. अब रेड फोर्सेस फॉर द वाटर. तो जैसे ही घूमना शुरू किया सेंट्रिपिटल फोर्स पिक्चर में आ गया. तो अब बकेट के बेस को वाटर दो फोर्सेस की वजह से रेडियली आउटवर्ड धक्का दे रहा है. बेस को बेटा, बेस को. ठीक है, वाटर एक्सपीरियंस कर रहा है ये दोनों फोर्सेस. तो मैंने इनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दी वाटर पे शो किया है. लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ बेस फील कर रहा है वाटर का धक्का, तो अगर मैं वो दिखाती ना तो वो यहाँ दिखाती. मैं इसको तुम्हें अलग से बना के दिखा देती हूँ कि बेस पर जो वाटर फोर्स लगा रहा है वो एक्चुअली आपको बेस पर दिखाने हैं. तब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि बेस ने क्यों रिएक्ट किया. ये स्मॉल mg है, वाटर का मास स्मॉल m लिया है. तो ये दोनों फोर्सेस ध्यान से देखो, ये वाटर ने बकेट पे लगाए, वाटर ने एक्सपीरियंस किया तो वाटर का ऊपर मैंने फोर्स वेक्टर लगा दिए. पर ये दोनों फोर्सेस वाटर ने एक्सपीरियंस किए तो वाटर क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन में नीचे की ओर भागे. लेकिन जब वो नीचे भागने की कोशिश करेगा तो रास्ते में क्या आ जाएगा, बेस. तो बेस उस फोर्स को अपने ऊपर झेल लेगा. यानी वाटर इन दोनों फोर्सेस की वजह से नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा और उस एक्ट में वो बेस पर ये दोनों फोर्सेस ट्रांसफ़र कर देगा. तो बेस भी रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा किस पर, पानी पे. तो जो बेस का रिएक्शन फोर्स है ना वो पानी एक्सपीरियंस करेगा. तो तुम्हें पूरी बात पिक्चर समझ में आई. पानी ने 3 फोर्सेस एक्सपीरियंस किए. वाटर एक्सपीरियंस 3 फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, gravitational force and normal reaction force because of the base. And this normal reaction force comes into the picture because this water experiences these two forces, tries to move, rush down in direction of these two forces, but base comes in the way and it takes these two forces effect and reacts to the water. Is it clear? ये डिफ़िकल्ट था क्या बेटा, फील नहीं हो पाया? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे. चलो अब हम लोग बात करते हैं पानी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं. क्लियर, बहुत बढ़िया. अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जब ये बकेट इस पोजीशन में आ गई, देखो ठीक है, टिल्टेड पोजीशन पर आ गई. अब टिल्टेड पोजीशन पर जो मास था उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो तो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अभी भी रेडियली आउटवर्ड है. ये टेंशन फोर्स बकेट पे लग रहा है, इसको पानी के केस में हमें ध्यान ही नहीं करना है. हमें सिर्फ वो फोर्सेस ध्यान करने हैं जो वाटर पे लग रहे हैं. तो तुम्हें समझ आया कि यहाँ पर असल में पानी बेस को डबल फोर्सेस से धक्का दे रहा है. विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स and due to its weight it is exerting force on the base of the bucket. But at this point water is pushing the base of the bucket due to centrifugal force only. So actually जिस फोर्स से बकेट के बेस को वाटर बाहर की ओर धक्का दे रहा था, क्या वो यहाँ और यहाँ सेम है? देखो एनालिसिस में कहानी के अंदर कहानी चल रही है ना, वो सेम नहीं है. यहाँ पर वो 2 फोर्सेस हैं और यहाँ पर तो सामने विजिबल है. अभी तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वैल्यू की बात ही नहीं कर रही. अभी तो सिर्फ ये कि एक फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो बेस पर जो भी फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द बेस, उसमें वेट कहीं अब आ ही नहीं रहा पिक्चर में.
अब तो बेस अपने परपेंडिकुलर बाहर की ओर धक्का सिर्फ ये फील कर रहा है। तो बेस किसको रिएक्ट करेगा? बेस सिर्फ इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो उसको बाहर की ओर पुश लग रहा है, ये उससे रिएक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ और यहाँ चेंज हो रहा है। अगर मैं ये दिखाना चाहूँ तो मैं n को वैल्यू बदलकर n डैश कर सकती हूँ, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभी भी सेंटर की ओर है। कम होकर भी ये फोर्स प्रेजेंट भी है और सेंटर की ओर भी है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ जाओ। टॉप मोस्ट पॉइंट पर mg, यस, लेकिन बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अभी भी बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड है। उसकी वजह से अभी भी ये बेस को Fc फोर्स से ऊपर की ओर पुश कर रहा है। तो बेस रिएक्ट करेगा ज़रूर। और क्योंकि ये तुम्हें अभी नहीं पता है, 11th जब सर्कुलर मोशन पढ़ेगा और 10th वाले बच्चे जब 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वो इन फोर्सेस की वैल्यूज़ को भी, फॉर्मूले को भी पढ़ेंगे। तो वो देखेंगे कि ये फोर्सेस पूरे रास्ते चेंज होते रहते हैं। मतलब कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है बेटा, और मज़ेदार ट्विस्ट है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा है, तुम देखो सेंटर की ओर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी भी एक्ट कर रहा है रेडियली आउटवर्ड। बस इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बकेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। पानी किस रफ्तार से सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। वो रफ्तार अगर एक वैल्यू से कम हुई तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं रह जाएगा कि ये बकेट को या वाटर को ग्रेविटेशनल पुल और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से बचा पाए, और तब पानी भी नीचे गिर जाएगा और बकेट भी इस टेंशन की कमी की वजह से सर्कुलर मोशन में नहीं रह पाएगी। तो इस पूरी कहानी का सारा जिम्मेदारी किस पर है? स्पीड ऑफ द बकेट पर। ये बात समझ आ रही है? कौन है इस कहानी का हीरो? स्पीड ऑफ द बकेट। वो Fc को कंट्रोल करेगा और Fc नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को कंट्रोल करेगा। तो बकेट पर 3 फोर्सेस टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहे हैं, और अगर स्पीड सफिशिएंट है तो इन दोनों फोर्सेस को किसने बैलेंस किया? यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स विच विल नॉट अलाउ द वाटर टू कम आउट, टू स्पिल आउट। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कि भाई बकेट को तो टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वाटर को कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो क्या मैं तुमसे पूछूं कि वाटर को कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? क्या तुम्हें दिख रहा है कौन सा फोर्स लगातार वाटर पे ऐसा एक्ट कर रहा है जो सेंटर की ओर बना हुआ है? यस, reaction force of base of the bucket. So, for centripetal force of bucket, this is normal reaction force. Centripetal force for water, sorry, not bucket, for water. That is normal reaction force of the base of the bucket. While tension force is centripetal force for bucket. So very interesting question is being asked, that which force is responsible for the circular motion of the water? And children write tension force. But beta, tension is not acting at all on the water, tension is acting on the bucket. तो जो फोर्स पानी पे लग ही नहीं रहा वो पानी के सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा? तो क्या तुम्हें क्लियर हो रहा है कि दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ बेस ऑफ द बकेट,
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बकेट। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक्सप्लेनेशन कि विच फोर्स इज कीपिंग द वाटर in dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium of water, let me write it here, dynamic equilibrium of water. Dynamic equilibrium of water. और कौन सा पोजीशन ऐसा है जब उसके गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा था? Obviously the topmost point of the vertical circle. तो ऊपर वाला फोर्स अगर नीचे वाले दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है तभी तो ये सिचुएशन बनेगी कि वाटर विल नॉट स्पिल आउट. सो दैट मीन्स द डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर इज गिवन विद हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, that normal reaction force plus weight of the water, these two are balanced by the centrifugal force. In some books it is written that normal reaction force and the weight of the water is providing centripetal force. Yes, इस position पर ध्यान से देखो, weight of the water and normal reaction force both are acting along the radius towards the center. So they are providing centripetal force at the topmost point and they are balanced by the centrifugal force. So is it clear? This analysis is clear. Now tell me, ये सारी कहानी एक बार हो सकता है? भाई आर्ट फिल्म है, हो सकता है कि बहुत अच्छे से एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके चला लो, पूरी कहानी, इसके किरदार फिर से सुन लो, और जब फिर से सुनोगे तो एक या दो या तीसरी बार में तुम्हें पूरी फिल्म समझ आ जाएगी. और एक बार पूरी फिल्म समझ आ गई तो फिर किसी बच्चे को पकड़ लो और उसको समझाओ कि भैया मैंने समझा, अब ये तुझे समझना पड़ेगा. और एक बार तुमने किसी को समझा दिया तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर. अब जब इस पर न्यूमेरिकल करोगे या इस जैसे किसी क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल करोगे तो ये जो सारी एनालिसिस है, ये सारी एनालिसिस तुमको उस न्यूमेरिकल के लिए इतना इक्विप्ड कर चुकी होगी कि मैं तुम्हें 100% अश्योर करती हूँ कि तुम्हें न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी. और जब तुम इस एनालिसिस को ठीक से समझ के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो और जब तुमको न्यूमेरिकल आसानी से करने को मिल जाए तो मेरे को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में बेटा. तो फिज़िक्स को कोई भी बच्चा मुश्किल महसूस नहीं करेगा बेटा. जादू है जादू फिज़िक्स. जितना जानोगे ना उतना पागल होते जाओगे इसके पीछे. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ.